Good morning, everyone. Welcome back to the online study. In the today's session, we are going to talk about the strengthening of the cement concrete pavements by the overlays. ठीक है, here we discuss the two types of the overlays on the cement concrete pavements. एक तो है bituminous या फिर flexible overlay और जो दूसरा है वो क्या है cement concrete overlay over the cement concrete pavement. Let's start with the bituminous overlay over the CC pavements. When a flexible or bituminous overlay is provided over a rigid pavement, the wheel load is distributed through a larger area by the overlay and therefore the wheel load stress on the rigid old pavements is also slightly decreased. जब हम ओल्ड रिजिड पेमेंट्स पे या फिर जिस पे डी स्ट्रेसेस आए हुए हैं उस पर बिटुमिनस ओवरले प्रोवाइड करते हैं तो व्हील लोड जो है वो ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसकी वजह से जो है स्लाइटली कम स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं ओल्ड रिजिड पेमेंट्स पे. Further, the maximum temperature differential in the rigid pavement is also decreased due to the bituminous overlay. और bituminous overlay की वजह से जो temperature differential है rigid pavements पे वो भी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है. जैसे हमने rigid pavement में पढ़ा था temperature stresses, तो टॉप पे क्या था हायर टेम्परेचर होता था, ठीक है, बॉटम पे लेस टेम्परेचर इन द डे टाइम, ठीक है, नाइट पे क्या होता है अपोजिट हो जाता था. तो इस तरीके से जो है टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस होते थे वो कम हो जाते हैं. Therefore, there is a reduction in the maximum value of combined stress due to the wheel load and the warping. तो wheel load और warping की वजह से जो stresses produce होते थे वो अब कम होंगे. It is also quite easy to construct a bituminous overlay over an existing CC pavement. तो ये क्या है काफ़ी easy है CC pavement के ऊपर overlay provide करना. The strengthening of a CC pavement by a bituminous overlay is a very convenient option. तो CC pavement पे बिटुमिनस ओवरले की वजह से जो हम ओवरले प्रोवाइड करते हैं ये क्या है एक इजी तरीका है, कन्वीनियंट ऑप्शन है. However, it is very essential that the bituminous overlay is laid before the old CC pavement develops the structural cracks. तो हमें ये बात का इंश्योर करना है कि जो हम ओवरले प्रोवाइड कर रहे हैं बिटुमिनस ओवरले ये जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है उस पर स्ट्रेसेस होने से पहले जो स्ट्रक्चरल क्रैक्स होंगे उससे पहले हम इसको प्रोवाइड करें. The useful service life of the rigid pavement can be increased considerably by constructing a thick bituminous overlay at the right time. तो सही समय पे जबकि स्ट्रक्चर क्रैक्स दिखने शुरू हो गए या फिर उससे पहले, ठीक है, हमने अगर ओवरले प्रोवाइड कर दिया है तो क्या होगा उसकी लाइफ बढ़ जाती है. और हमें ऐसे ही प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो स्ट्रेसेस हैं जो क्रैक्स वगैरह हैं वो डेवलप होने या वाइडन होने से पहले पहले हम उसको प्रोवाइड कर दें. However, it is desirable that the existing cracks in the old CC pavement are properly treated before constructing the overlay. In case अगर ऐसा हो गया कि वहाँ पे क्रैक्स वगैरह प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, तो क्रैक्स हो सकते हैं स्ट्रेसेस की वजह से, वो मड पंपिंग हो जो फेलियर है रिजिड पेमेंट पे, ठीक है, तो अगर क्रैक्स डेवलप हो गए तो हमें प्रॉपरली क्या ग्राउटिंग वगैरह करके, ठीक है, जो क्रैक्स हैं इनको फिलअप करना है, तब हमें CC पेमेंट पे बिटुमिनस ओवरले प्रोवाइड करना है. इन एडिशन क्रैक रिटार्डिंग लेयर may also be laid over the old concrete pavement. तो इसके अलावा जो क्रैक रिगार्डिंग लेयर है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है ओवर द ओल्ड कंक्रीट पेमेंट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द बिटुमिनस ओवरले. तो बिटुमिनस ओवरले को प्रोवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे ओल्ड कंक्रीट पेमेंट पे क्रैक रिटार्डिंग लेयर को हम प्रोवाइड करेंगे. इट इज़ एडविजेबल नॉट टू ले थिन बिटुमिनस ओवरले ओवर ओल्ड CC पेमेंट्स. नाउ there are no accepted methods for the design of bituminous overlay over the existing CC pavements. तो कोई भी यहाँ पे accepted methods नहीं है for the design of bituminous overlay over existing CC pavements. Generally, the thickness is decided based on the condition of the CC pavement and the past experience. तो generally जो है thickness is decided based on the condition of the CC pavement and the past experience. तो कंडीशन पे और पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही ये डिज़ाइन किया था. नाउ दूसरा जो टाइप है वो है CC ओवरले ओवर द CC पेवमेंट. तो हम किस तरीके से सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट पे CC ओवरले को प्रोवाइड करते हैं. व्हेन अ रिजिड और द CC ओवरले इज कंस्ट्रक्टेड ओवर एन एग्जिस्टिंग CC पेवमेंट द इंटरफेस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू कंक्रीट कैन नॉट हैव द परफेक्ट बॉन्ड. तो जब भी हम CC पेमेंट पे या जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है उसके ऊपर CC ओवरले प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे इंटरफेस पे एक परफेक्ट बॉन्ड नहीं बन पाता है.
थिक वन। तो ये जो है इस तरीके से दोनों जो स्लैब हैं एक स्लैब की तरह एक्ट नहीं करती हैं। हाउएवर वाइल कंसिडरिंग टू ले सीसी ओवरले ओवर एन एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट, थ्री टिपिकल टाइप्स ऑफ इंटरफेस आर पॉसिबल। तो जब कभी भी हम सीसी ओवरले प्रोवाइड करते हैं तो तीन तरह के इंटरफेस की पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहली है अनबॉन्डेड ओवरले, हम ऐसा करें कि जो दोनों लेयर्स हैं वहाँ पे अनबॉन्डेड कर दें। दूसरा पार्शियली बॉन्डेड हो, और तीसरा क्या हो, बॉन्डेड ओवरले हो। ऑफ दीज थ्री टाइप्स बॉन्डेड ओवरलेज आर जनरली नॉट बीइंग अडॉप्टेड। तो इनमें से जो है तीसरा जो टाइप है ये अडॉप्ट नहीं किया जाता है, एज देयर आर सेवरल कॉम्प्लिसिटीज इन्वॉल्व्ड। नाउ अनबॉन्डेड सीसी ओवरले, तो इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं ये सीखेंगे। द अनबॉन्डेड सीसी ओवरले इज जनरली प्रीफर्ड if the existing CC payment has developed substantial de-stresses। तो जो ये अनबॉन्डेड सीसी ओवरले है ये जनरली प्रीफर्ड करी जाती है जब जो एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट है उस पर क्या हो, सब्सटेंशियल de-stresses डेवलप हुए हों। रिपेयर वर्क्स आर कैरिड आउट ऑन द एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट्स, जो एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट्स है उस पर रिपेयर वर्क्स किया जाना चाहिए। द एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट स्लैब is separated at the interface by a thin bituminous layer before laying CC overlay such that there is no bond between the old and the new layers। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बिटुमिन लेयर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और ये बिटुमिन क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है उसके ऊपर बिटुमिन आया और जो ऊपर सीसी ओवरले पड़ने वाला है तो इसको सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पे ये सेपरेशन लेयर की तरह एक्ट करता है। तो इंटरफेस पे हम क्या करते हैं, बिटुमिनस मटेरियल का यूज करते हैं। द सेपरेशन interlayer consists of the bituminous macadam layer of minimum thickness of 100 mm। जो सेपरेशन इंटरलेयर है वो बिटुमिनस मैकेडम का बना होता है और जिसकी थिकनेस मिनिमम 100 mm होती है। द न्यू सीसी पेमेंट ओवरले इज लेड अबव दिस सेपरेशन लेयर, जो नया सीसी पेमेंट ओवरले है उसको इसके ऊपर प्लेस किया जाता है या फिर इसके ऊपर जो है ओवरले किया जाता है। द थिकनेस ऑफ अनबॉन्डेड ओवरले इज डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो एच नॉट इक्वल टू हो गया एच एम स्क्वायर माइनस सी एच ई स्क्वायर और इस ब्रैकेट की पावर 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच एम स्क्वायर माइनस सी एच ई स्क्वायर। एच नॉट है थिकनेस ऑफ द सी सी ओवरले, ठीक है, तो इन सेंटीमीटर। सी सी ओवरले की थिकनेस हो गई सेंटीमीटर पे। एच एम हो गया थिकनेस ऑफ मोनोलिथिक सी सी पेमेंट स्लैब डिजाइन फॉर द प्रोजेक्टेड ट्रैफिक। तो एच एम क्या है, थिकनेस ऑफ मोनोलिथिक सी सी पेमेंट स्लैब। तो मोनोलिथिक सी सी पेमेंट स्लैब की थिकनेस है जिसे हम प्रोजेक्टेड ट्रैफिक के लिए डिजाइन कर रहे हैं। थिकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट स्लैब ये एच ई मेंशन होगी। और सी है एम्पेरिकल फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चरल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट, ठीक है। इसको हम आगे टेबल पे डिस्कस करेंगे। नाउ अनदर टाइप इज पार्शियली बॉन्डेड सीसी ओवरले। द एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट इज थॉरोली क्लीन टू रिमूव द लूज मटीरियल्स, डर्ट्स, ऑयल्स एंड द ग्रीजी मटीरियल्स। जो एग्जिस्टिंग सीसी पेमेंट्स है उसको हम थॉरोली क्लीन करते हैं सो दैट वी रिमूव द लूज मटीरियल्स, डर्ट्स, oils and the greasy materials। The surface में भी scrubbed with the wire brush। तो surface को हम क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं ताकि बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। washed with the water and detergent। A partially bonded CC overlay is obtained if the new CC overlay is laid over the clean CC payment interface। तभी यहाँ पे partially bond हो पाएगा। The thickness of partially bonded overlay is determined using the following formula। HM की पावर 1.4 माइनस CHE की पावर 1.4, इस ब्रैकेट की पावर 1/1.4, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था एच नॉट के लिए, तब वो क्या था, अनबॉन्डेड था। ये क्या है, पार्सली बॉन्डेड है। तो यहाँ पे एच नॉट क्या है, थिकनेस ऑफ सी सी ओवरले है। एच एम है थिकनेस ऑफ मोनोलिथिक सी सी पेमेंट स्लैब डिजाइन फॉर द प्रोजेक्टेड ट्रैफिक। एच ई है थिकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सी सी पेमेंट स्लैब। सी है फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सी सी पेमेंट। द वैल्यूज ऑफ पेमेंट कंडीशन factor C of the existing CC payment is assessed in terms of the length of the cracks measures in meter per 10 meter square area of the payment। तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, मीटर पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे हम C को मेजर करते हैं और जो वैल्यूज है वो मेंशन है, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ द पेमेंट कंडीशन फैक्टर, तो पेमेंट कंडीशन है गुड और साउंड, स्लाइटली क्रैक्ड, फेयरली क्रैक्ड, मॉडरेटली क्रैक्ड, बैडली क्रैक्ड, वेरी बैडली क्रैक्ड, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन को बताता है। क्रैक लेंथ है मीटर पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया, 0 to 1.0, 1.0 to 2.5, 2.5 to
5.5, 5.5 टू इतना, ठीक है, एक्सीडिंग 12.0। और वैसे पेमेंट कंडीशन फैक्टर सी वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है। तो गुड और साउंड के केस में देखिए, जो क्रैक लेंथ है मीटर पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया, तो अगर ये वैल्यू 0 to 1.0 है तो ये गुड और साउंड होगा, और जो पेमेंट कंडीशन फैक्टर है सी वो 1.0 है। स्लाइटली क्रैक के लिए जो क्रैक लेंथ है इन मीटर पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया वो 1.0 to 2.5 है, तो पेमेंट कंडीशन फैक्टर उसके लिए क्या है 1.0। फेयरली क्रैक के लिए 2.5 to 5.5, इसके लिए वैल्यू 0.75। तो वेरी बैडली के लिए एक्सीडिंग जो हमारा क्रैक लेंथ है वो एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है, 12.0 मीटर पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये क्या थी, वैल्यूज गिवन थी, ठीक है, ऑफ द पेमेंट कंडीशन फैक्टर एंड द क्रैक लेंथ इन 10 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये है इस वीडियो का अंत। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।